Good morning, students. Basically, class 8. This is your first video for your lesson 1, the best Christmas present in the world. This lesson is from your textbook Honeydew. Before going to start this session, I would like to tell you one thing. You have to study one by one, concentrate on the concentrate way, complete your chapter to understand this lesson. If you are not going to study, if you are not going to read this lesson before watching this video, you will not able to understand what is going on in this video. In this video, I will tell you the summary of the lesson, the best Christmas present in the world. Is that clear? So we should start the lesson. I hope you everyone have understand the lesson. You everyone have to read and write the lesson properly. Afterwards, you are going to watch this video. So before watching this video, you have some word meanings. You have to write down some word meanings on in your notebook. So note down it, and I am going to start the summary. Look at this. When you are going to read, you are going to study this whole chapter, you will find some dates, something you will find in your book. Keywords of the lesson, what is the keyword of the lesson is date. In that book there is two date had mentioned. 25th of January 1915, on this day a letter was received. Clear? A letter was received. And one on 26th December 1914, this letter has been written. Clear? Mrs. Macpherson is a character in this lesson. The roll top junk roll top box from where the author got some text. The letter, Jim and Cunning, Dorset and Hardy, war of football, the celebration, the hope, and the last, the burnt house. You will get these keyword features while reading your book. So let us start the session. I will tell you in the bilingual way, but I hope you will understand what I am going to say. If anybody have any problem while understanding the lesson or while understanding the points, you may text me on my YouTube channel Education Express by Sanjeev Misra. You will subscribe and like this, then you will get the new videos of the lesson and you will text on that. I will make you more understand. Clear? About the lesson, we should try to understand the characters. How many characters in this lesson? The Michael Morpurgo, who is he? He is the author of the lesson. Which lesson? The best Christmas present in the world, written by Michael Morpurgo. Clear? And second, Jim Macpherson. Who is Jim Macpherson? He was the leader of his English troop. Here English means not used as a subject. English means a person who lives in a British. Next, Cunning Macpherson, wife of Jim Macpherson. Who is Cunning Macpherson? She is the wife of Jim Macpherson. And Hans Wolff. Who is Hans Wolff? Captain of German troop. Clear? Now we understand these words. These all words you will find in your lesson. So I hope you understand about the lesson, and once you are going to point out in that way, the whole story cover in your mind, and afterwards I will tell you the summary, and then you will easily able to read and write the questions of the lesson. What kind of questions exam arise in the lesson? About the character sketch of Jim Macpherson, character sketch of Cunning Macpherson, or date when this incident will happen, what he got in that, all the questions they may be arise. So I think we should start the summary. So I am repeating my words that you have to read the lesson properly, carefully, then you will understand the summary. Is that clear? So let us start. The story start with the narrator. The story went to a junk shop जहाँ से वो लेके आया,
एंड परचेज अ रोल टॉप डेस्क विच वॉज इन बैड कंडीशन। वहाँ पे गया, कबाड़ी की दुकान पे गया, वहाँ से रोल वो लेकर आया। क्यों लेकर आया? नया क्यों नहीं लिया? नया कॉस्टली था, इसलिए उसने सेकेंड हैंड परचेज किया उसको, जो थोड़ा सा खराब था। अब वो डिसाइड किया कि भाई इसको जो है ना 26 और 25 ऑफ क्रिसमस है, उस दिन वो बैठ करके उसको सही करेगा, ठीक है। अब उसके आगे क्या हुआ? द नरेटर स्टार्टेड इट्स रिपेयरिंग ऑन क्रिसमस ईव। एक वर्ड यहाँ पे आया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईव। ईव को यूज करते हैं ओकेजन ऑफ, जैसे अगर मान लीजिए 25 ऑफ ईव कहा है तो 25 द सेम डे एंड बिफोर दैट डे, बिफोर द डे, द इवनिंग ऑफ बिफोर दैट डे, उसकी पूर्व संध्या पे हम लोग यूज करते हैं ईव, यानी कि 24 दिसंबर के शाम को वो उसको रिपेयर करने बैठा। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या होता है? एंड फाउंड अ लेटर इन इट्स ड्रावर। जब आप देखो उसको ड्रावर खींचते हैं, उसमें उसको एक लेटर मिलता है। क्या होता है? फिर लेटर को पढ़ता है वो। आफ्टरवर्ड्स ही रीड द लेटर, इट वॉज फ्रॉम जिम मैकफर्सन टू हिज वाइफ कनी एज रिटन ऑन टॉप। जब आप लेटर लिखते हो ना, मैं लेटर अगले सेशन जब ग्रामर का आपका सेशन लूंगा तो उसमें आपको लेटर लिखना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपका 4 नंबर कवर करता है। तो जब लेटर दिखा उसने ना, तो उसके टॉप पे क्या लिखा था? जिम मैकफर्सन लिखा था। किसको भेजा था? कनिंग। रिसीवर का लेटर का एड्रेस क्या था? कनिंग मैकफर्सन। हु इज ही? शी इज अ वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन। क्लियर? फिर वो मिला, उसको लिखा हुआ था, लेटर उसको मिल गया। फिर क्या हुआ? was the leader of the England army। पहले बता दिया था कि वो कौन था? लीडर था। and he described that England and German was engaged in a war। उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि दोनों लोग बिजी थे, व्यस्त थे एक युद्ध में। was, ठीक है, वो लोग युद्धाभ्यास भी करते लोग, युद्ध। ये देखिए बात कहाँ की है? WW1। WW1 का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड। आप लोग देखा होगा 2 बार होता विश्व युद्ध, है ना? तो वर्ल्ड हमने देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था, है ना? तो ये हो गया वर्ल्ड वॉर 1। ये हमने शॉर्ट लिखा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1। प्रथम विश्व युद्ध की बात है। उस समय दोनों लोग बिजी थे, इंगेज थे। किसमें इंगेज थे वो लोग? युद्ध में, ठीक। फिर क्या हुआ? अब उसके लेटर मिल गया। अब क्या हुआ? क्रिसमस मॉर्निंग, उस क्रिसमस की मॉर्निंग क्या हुआ? वंडरफुल थिंग हैपेंड। फर्स्ट जर्मन्स विशेज हैप्पी क्रिसमस टू इंग्लिश सोल्जर्स एंड सेम रिस्पॉन्ड वाज गिवन बाय इंग्लिश आल्सो। देखिए जब हम लोग अभी देखो, जब कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? होली होता है, दिवाली होता है, क्रिसमस होता है, ईद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। तो वहाँ भी क्या ना, एक जब क्रिसमस का दिन था तो वहाँ पे क्या हुआ? दोनों लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे? एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को वो अभिवादन कर रहे थे, एक बधाइयाँ दे रहे थे। वही सेम चीज वहाँ भी हो रहा था। फिर क्या हुआ? और हंस रहे थे, खा रहे थे, मतलब पूरा पार्टी मस्ती कर रहे थे। देख लो भाई, फेस्टिवल था। इट हैपेंस, यूजुअली इट हैपेंस, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, ड्रिंकिंग। आफ्टर दैट दे प्लेड फुटबॉल मैच। देखिए यहाँ पे हमने देखो लिखा, मैंने कहा एक एक चीज कब चलता है। वहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ था, उसी के बीच में फुटबॉल मैच भी हुआ था। वो लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। मैचेस इन विच जर्मन्स वोन। अच्छा, जब मैच होगा तो कोई एक तो जीतेगा, ये तो ड्रॉ होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ? अभी हमने सबरी में किताब में आपने पढ़ा होगा, रीडिंग किया होगा, तो वहाँ पे जर्मन जो होते हैं ना वो जीत जाते हैं, है ना? इन द नाइट बोथ ट्रूप्स सैंग कैरोल्स एंड हैड अ पीसफुल क्रिसमस। उस शाम वो लोग गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं और शांति से पूरा त्योहार लोग फेस्टिवल जो ना मनाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। ट्रूप कौन? ट्रूप बने कौन? दोनों सेनाओं की टुकड़ियां, ठीक है ना? दोनों सेनाओं की टुकड़ियां। द ऑथर डिसाइडेड टू गिव दिस लेटर टू जिम्स वाइफ। अब ऑथर क्या डिसाइड करता है कि भैया जो है ये जो लेटर मुझे मिला हुआ है, मैं जो हूँ ना, मैं उसकी वाइफ को दूंगा, मैं जो उसको पहुंचाऊंगा, उसको तक दूंगा। कौन? ऑथर। ऑथर कौन? ये हमारे माइकल मॉरपर्गो, ठीक है। He went to the address which was written on the letter envelope। वो उस एड्रेस पे जाता है जहाँ पे एनवेलप पे लिखा होता है, उस एड्रेस पे वो जाता है। एंड और क्या होता है जब पहुंचता है तो where he found that an accidental fire caught in the house and she was in nursing home। क्या होता है? देखिए घर जो होता है पूरी तरह से जल गया होता है और उसको क्या मिलता है कि वो कहाँ पे है? वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नर्सिंग हाउस में है। फिर क्या होता है?
ही रस्ड टू नर्सिंग होम, वहाँ पे दौड़ता भागता होता है, रस टू जाता है देखने के लिए नर्सिंग होम में, ठीक है। वेयर ही फाउंड जिम्स वाइफ, जहाँ उसको जिम्स की वाइफ मिलती है, एज सी वाज ग्रोन टू ओल्ड, टी डबल ओ, देखो टी डबल ओ का यूज किया गया है, टी डबल टी ये एडवर्ब होता है जो बहुत ज्यादा मतलब अवस्था को बताता है, और ये ट्यू जो होता है वो प्रीपोजिशन को बताता है। ये हम लोग ग्रामर के सेशन में समझेंगे कि टू टी डबल का कहाँ यूज करेंगे और टी ओ का यूज कहाँ करेंगे। सारे वीडियोस में आपको डालूंगा इस पे सारी चीज, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कहानी क्या हुआ, आग लग गई थी, जल गया था पूरा, वो नर्सिंग होम में थी, वो भागता है जाता है देखने, जहाँ पे पता तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, टी डबल ओ लिखा है, इनकी बहुत ज्यादा बुजुर्ग, बहुत ज्यादा बूढ़ी, बट नेचुरल है, ये होना ही था। फिर क्या हुआ, in the waiting of his husband he mistook the author by understanding him as Jim। अब देखिए गलती से वो ऑथर को जिम समझ लेती हैं, जो ये है ना, ये मिसेस मैकपर्सन, ये अपने हस्बैंड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती होती हैं, गलती से जिम को ही अपना, जो जिम को, वो ऑथर को ही जिम समझ बैठती हैं। His husband when narrator met him, जब नरेटर उससे मिलता है, she declared him as best Christmas present in the world, और उनको, उनके लिए उनका यही जो होता है ना बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पर हस्बैंड का लेटर मिला, गलती से जो मिसेस मैकपर्सन है वो उस ऑथर को ही जिम समझ लेती है और कहती है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट रहा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से 2-3 बार सुनेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ, सुनने से पहले आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आप बुक का लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, और इस चैनल को आप अपने YouTube चैनल पे जाके सर्च करके और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आप नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं एक बार आपको पूरा सीन दिखा देता हूँ, ये सब आप एक नोट्स के रूप में है, पूरा लेसन को एक बार में समझने के लिए है, आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू विल टेक्स्ट ऑन मी, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग अगले आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।